ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. ધોરણ 8 વિષય ગુજરાતી, જેમાં પાઠ નંબર 1 એટલે કે પાઠ નંબર 6ની અંદર લેખણ ઝાલી ન રહી, જેનો એક પાઠ આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોઈ ગયા, જેમના લેખકનું નામ હતું જોરાવરસિંહ જાદવ અને પાઠનો પ્રકાર હતો લોકકથા. જેમાં આપણે જોયું કે ભાલ પ્રદેશના લોકોની ચોમાસા પહેલાં તે લોકો ગામની એટલે કે તાલુકાની અંદર બજારમાં ખરીદી કરવા માટે જાય છે. તેમાંના બે વ્યક્તિ, એક કહળસંગ અને એક હરકચંદ શેઠ, બંનેની જે વાતચીત થાય છે તેની આપણે આગળ પાર્ટ નંબર 1ની અંદર વાત કરી કે કહળસંગ ગાડું જોડીને ગામમાં 4 મહિના સુધી ચાલી રહે તેટલો સામાન લેવા માટે જાય છે અને હરકચંદ શેઠ પણ ધંધુકે તાલુકે હટાણું કરવા માટે એટલે કે વૈદ્યના પડીકા લેવા માટે ગયેલા હોય છે. ત્યારે સાથે સાથે ગાય વિયાવાની હોવાના કારણે 2 મણ કપાસિયાનું બાચકું માથા ઉપર લઈને આવતો હોય છે. તે કહળસંગભાઈને પોતાના ગાડામાં એ કપાસિયાનું બાચકું મૂકવા માટે એને કહે છે, પરંતુ કહળસંગભાઈ છેલ્લે બળદ તાણી ઝાલ્યા રહેતા નથી એ વાક્ય બોલે છે અને આ વાક્ય ચતુરવાણિયાના મનની અંદર ઘૂમરીઓ લયા કરે છે, એટલે કે બંધાઈ જાય છે અને એ વાક્ય હંમેશના માટે એને મગજની અંદર કોતરાઈ જાય છે. એમને હવે આપણે આગળના પાર્ટ નંબર 2 એટલે કે આગળના પાઠની વાત કરીએ તો એમને ભીત સોસરવું સૂઝ્યું કે કહળસંગ નરાતાર દાંડાઈ કરી છે. એમને ખ્યાલ આવી ગયો શેઠને કે આ કહળસંગ છે એને મારી સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું છે, ઉદ્ધતાઈ કરી છે જે ન કરવી જોઈએ. પછી એમનાથી બબડી જવાયું. એ બોલી ઉઠ્યા કે મહાળા રજપૂતે કરી છે ને કંઈ, કે આ રજપૂતની તો આવી બની છે, હવે જોઉં છું એણે જે મારી સાથે કર્યું છે હવે હું તેની સાથે કરું છું. કપાસિયાનો કોથળો માથે લઈને હરકચંદ ભાંગેલ પગે બજારમાં પાછા ગયા. આ વાતને માથે થઈ અને વર્ષેકના વહાણા વાઈ ગયા. ગાડામાં કહળસંગે મૂકવા ના દીધું એટલે હરકચંદ શેઠ થાકેલા પાકેલા પાછું કપાસિયાનું બાચકું લઈ અને બજારની અંદર જાય છે અને બીજા ગાડામાં મૂકી અને એને ગામની અંદર લઈ આવે છે. પણ આ વાતને હજુ 1 વર્ષ વીતી જાય છે એટલે કે પૂર્ણ થાય છે ત્યારે હરકચંદ શેઠના મગજની અંદર આ કહળસંગે જે બળદ તાણ્યા ઝાલી રહેતા નથી એ વાક્ય એમના મગજની અંદર બેસી ગઈ છે. અને કેવી રીતે બેસી ગઈ છે? પણ મદારીના કરણિયામાં સાપ જેમ ગૂંચળું વળીને પડ્યો રહે તેમ એમના લમણામાં રહી ગઈ. એટલે કે આ વાત એમના મગજની અંદર, જેમ પેલો મદારી ખેલ बताने के लिए आता है तो आपने देखा होगा वो जैसे ही टोकरी खोलता है तो टोकरी में सांप पूरा गोल 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 घूम के सेट होके बैठा होता है. जैसे ही टोकरी खुलती है वो अपना शीश खड़ा करके बाहर निकल आता है. उसी तरह कहळसंग ने उस टाइम हरकचंद सेठ की हेल्प नहीं की. उस बात को लेकर हरकचंद सेठ के दिमाग के अंदर जैसे सांप एक टोकरी के अंदर गोल गोल सेट होके बैठ जाता है, उसी तरह वो बात भी कहळसंग के बारे में हरकचंद के सेठ के दिमाग में घुस गई है. एवां कुदरत ने करवू कि कहळसंगना बापू गुजरी गया. अभी वही कहळसंग जो गाड़ू लेके गाँव में हटाणुं करवा माटे गया था, તેમના બાપુ ગુજરી ગયા એટલે મૃત્યુ પામ્યા. ગામમાં કોઈ ભણેલું ન મળે, કોઈનો કાગળ આવ્યો હોય તો હરકચંદની હાટે વાંચવા જવું પડતું. ગાँव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोઈને વાંચતા લખતા આવડતું નહોતું. कोईनो पण कागड़ आवे, किसी का भी लेटर आता है तो सबको हरकचंद सेठ के पास उनकी दुकान पे उसे पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि वो ही अकेले पढ़े लिखे थे. उज्जड़ गाँव में एरंडो प्रधान, वो ज़्यादा तो नहीं पढ़े थे, लेकिन जो कुछ भी पढ़े थे उससे वे लोग गांव के लोगों के जो कुछ भी लेटर्स आते थे उसे पढ़ पाते थे. यारे कि यदि किसी को पढ़ना नहीं आता है तो फिर सेठ को आता है तो सेठ के पास से जो कुछ भी जानने को मिला वो सही है. उज्जड़ गाम में एरंडो प्रधान एनो अर्थ थाय छे बहु सारी वस्तु न મળે ત્યાં ओछी खराब पण सारी लागे. यानी हमारे पास नहीं है तो हमें जो कुछ भी मिलता है इट इज़ ओके, वो बराबर है.
गांव आखूं अंगूठा छाप એટલે हरकचंद भाव पूछे। गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए सभी को पढ़ने लिखने या कुछ भी काम लेखन का कुछ भी काम हो तो उसके लिए हरकचंद सेठ के पास जाना पड़ता था। कोईना दस्तावेज लखवा होय, खातुं पाडवुं होय के सारा भला अवसरे कंकोत्री लखवी होय के माठा प्रसंगे कागळ लखवा होय तो हरकचंद शरमना मार्या काम करी देता। किसी को भी अपनी ज़मीन के दस्तावेज लिखने हैं या फिर बैंक में कोई खाता खुलवाना है या फिर किसी की शादी है तो उसकी शादी की कंकोत्री लिखनी है या फिर कोई मृत्यु हुई है घर के अंदर तो उसके बारे में जो पत्र लिखा जाता है उसे काळोतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? काळोतरी। मृत्यु प्रसंगे लखवामां आवतो पत्र એને કહેવાય કાળોતરી અને લગ્ન પ્રસંગે લખવામાં આવતો પત્ર એટલે કહેવાય કંકોત્રી। शर्मना मार्या काम करी देता। तब हरकचंद सेठ सबको हेल्प करते, सबका काम कर देते थे। कहळ संगे हरकचंद सेठने 2 हाथ जोड़ीने काळोतरीना कागळ लखवा माटे बोलाव्या। कहळ संघ के फादर अभी एक्सपायर्ड हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए पहले तो फ़ोन वगैरह थे नहीं, इसीलिए सबको मैसेज देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो पत्र लिखे जाते थे और सभी को पत्र लिखने थे, इसीलिए कहळ संघ को हरकचंद सेठ के पास जाना पड़ा। सेठ ने मन में थयुं कि ते दी तो बापूना बळदिया ताणी झाल्या रहता नहोता अने आज मेलाना कागळ लखवा माटे बोलावे छे। उस दिन की बात अभी सेठ के दिमाग में घुसी हुई थी। उसने सोचा कि उस दिन मेरे सिर पे इतना बड़ा बोझ था, इतना भार था, तो भी उसने अपने गाड़ी को, अपनी बैलगाड़ी को रोका नहीं और आज उसके बापू गुजर गए हैं, उसके बापू की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे ख़राब कार्य में मेरे पास अपना लेटर या कागज़ लिखवाने के लिए आया हुआ है। ठीक लागमा आव्या छे, बराबर अब में मेरी पकड़ में आया हुआ है। आज इन्हें भालिए न भरावी दऊँ तो मारू नाम हरकचंद नहीं। भालिए यानी कि भाला, जो सैनिक युद्ध में उसका यूज़ करते हैं, उस पर भराना यानी उसकी परिस्थिति का लाभ आज मैं ले ही लूँगा, ऐसा हरकचंद ने सोचा है। और सेठ ने कागज़ लखवा बैठा और सेठ ने कागज़ यानी कि उसकी पापा की मृत्यु के जो कागज़ लेटर्स लिखने थे वो लिखने स्टार्ट कर दिए। कहळ संगे एमना बापूનું कारज पाचमનું राखेલું, એટલે કે जो बाद में जो क्रियाविधि होती है, हम 12 दिन के बाद जो क्रियाविधि करते हैं उसे 12मुं कहते हैं गुजराती में। 12मानी प्रक्रिया एने एकम, दूज, तीज, चौथ और पंचमी आती है उसके दिन, यानी कि पाचमना दिवसे राखेलुं हतुं। सेठियाए थोड़ा कागळ पाचमना, थोड़ा छठना, थोड़ा सातमना, आठम अने नौमना अने थोड़ा दसम अने 11नी तिथिना लखी जावा दीधा। सेठ ने क्या किया, उस टाइम कहळ संघ ने उनके साथ जो किया था उसका बदला लेने के लिए सभी कागज़ में एक ही तिथि नहीं लिखी, पंचमी नहीं लिखी, सभी में अलग अलग लिखा। थोड़े थे उसमें छठ लिखी, किसी में पंचमी लिखी, किसी में सप्तमी यानी कि सातम, किसी में आठम और किसी में नौम, और थोड़े बहुत बचे थे उसमें दसम और 11 की भी तिथि लिख दी। तो उससे क्या हुआ, पछी तो भाईનું 1 દિવસનું કાર્ય હતું એ लगातार 7 દિવસ ચાલ્યું। जब भी 12वीं की जो क्रियाविधि होती है वो एक ही दिन की होती है और कहळ संघ ने उसे पाचम के दिन का फिक्स किया था, लेकिन यहाँ पे हरकचंद सेठ ने जो लेटर्स लिखे थे उसमें पूरे 7 दिन में थोड़े 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 डिवाइड कर दिए थे, उसे वेंच दिया था। એટલા માટે ઓલ્યા જાય ને ઓલ્યા આવે, ઓલ્યા જાય ને ઓલ્યા આવે, कहने का मतलब जिसे पंचमी के मिले हैं वो पंचमी के दिन आए, जिसे छठ के मिले वो छठ के दिन आए, जेने सातम ना મળે सातमना दिवसे, जेने आठम ना મળે आठमना दिवसे, जिसको जिस दिन का कागज़ लेटर मिला उस दिन वे आए। कहळ संघना कुटुंबवाળા સંધાઈ વિચારમાં પડી ગયા કે મહાળું આ ચમનું વેતરાણું છે। यहाँ पे गामठी शब्दों का प्रयोग किया गया है। महाड़ू यानी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है।
चमनू एटले केवी रीते, वेतराणु एटले ये कैसे हुआ, कुछ मालूम पड़ नहीं रहा है, ये कैसे हो गया। फिर जो गांव के लोग थे उन्होंने कहर संघ से पूछा कि अल्या मेलाना कागल कोनी पाहे लखाव्या था, ये आपके बापू की जो मृत्यु की लेटर्स थे वो आपने किसके पास लिखवाए थे। तो उन्होंने बोला कागल तो हरकचंद सेठे लखी दीधा था। फिर आगे फिर से ये तो डायू मनिक छे, ये उठीने आवी भूल न करे हो। गांव के लोग बोल रहे हैं वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो ऐसी कुछ लापरवाही नहीं दिखा सकता, ऐसे भूल उससे हो ही नहीं सकती। सेठियाने बोलावीने पूछो तो खबर पड़े ने, आ तो खमतीधर खोरडું છે, પણ કોઈ મોડા પાતળા માણસનું ખોરડું હોય તો ખેતર વેચવા વારો આવે કે બીજું કંઈ। हाँ, यहाँ पे गांव के लोग बोल रहे हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो, कि कहर संघ के पास थोड़े बहुत पैसे थे, यानी कि खमतीधरનું खोरडું यानी कि घर, उसके परिस्थिति थोड़ी अच्छी थी। उसकी जगह पे यदि कोई मोड़ा पातळा એટલે કે ગરીબ માણસનું ખોરડું હોય એટલે કે એનું ઘર હોત તો એને ખેતર વેચવા વારો આવે, એટલે કે એની પાસે જે કોઈ પણ માલ મિલકત હોય એ તેને વેચી કાઢવી પડે, બીજું કાંઈ નહીં। हरकचंद सेठ ने टेढ़ू मोकलाव्યું। फिर एक व्यक्ति को हरकचंद सेठ को बुलाने के लिए भेजा। हरकचंद सेठ हाथ में धोतियानो छेड़ो झाली, काने लांबी लेखण खोसी, माथे राती पंचाड़ी पाघड़ी अने पगमां मोजड़ी पहेरी सेठ कहर संघना फळिये आव्या। सौ पूछवा लाग्या, अभी उनका पहरवेश दिया है, हरकचंद सेठ कैसा पहरवेश पहनते हैं। धोती नीचे पहना है, धोती का जो खुला पार्ट होता है उसे हाथ में पकड़ के रखा है। कान के अंदर जो बीच में सिर और कान के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे उन्होंने एक लंबी लिखने के लिए एक कलम डाली हुई है। सिर पे रेड रंग की एक पांचाड़ी यानी कि बहुत लंबी 5 वर्ण वाली है, अलग अलग वर्ण के लोग जो पहनते हैं ऐसी पचरंगी मीन्स 5 कलर्स वाली पगड़ी पहनी हुई है, पग में मोजड़ी और पग में मोजड़ी पहनी है। तो कहर संघ के घर पे वे आते और सभी बुज़ुर्ग लोग उनसे पूछते हैं कि हरकचंद भाई आ चमनू बफाणु छे, ये कैसे हुआ, ये सभी लोग अलग अलग दिन पे कैसे आए। सेठियाए ठावकू मों करी अने मांडीने बात करी। सेठ ने अपना मुँह थोड़ा टेढ़ा किया और आंसर दिया, सांभळो भाईओ, वरदी मोरनी बात छे, सुनिए। 1 साल पहले की बात है, 1 वर्ष पहलानी बात है। कहर संघ भाई धंधु के हटाणु करी गाड़ू लईने गाम में आवता था। वो पहले का जो इंसिडेंट है वो पूरा बता रहे हैं यहाँ पे। ई वखते बजार सोसरो हूँ कपासियानो कोथड़ो लईने ईमना गाड़ा में मूकवा गयो, ते दी ईमना पाणियारा संधिया बळदो झाल्या नहोता रह्या। ईमना बापूना करज टाणे कागळ लखता लखता मारी लेखण झाली न रही। बहु ताणी झाली खम माने तो ने। यहाँ पे क्या बोला कि 1 साल पहले जब भी कहर संघ भाई धंधु के चीज वस्तु खरीदवा माटे गया था त्यारे गाड़ू लईने गाम एटले के धंधु के गया ए वखते बजार में हूँ एमनी पाछळ पाछळ कपासियानो बाचको लईने दौड़तो हतो, त्यारे एमना पाणियारा संधिया जातिना जे बळदो हता ए एमनाथी कंट्रोलमां रहता नहोता। तो एमनी जेम ज एमना बापूना मृत्युનું કાગળ લખતા લેટર લખતા મારા હાથની લેખણ મારા હાથમાં ઝાલી रहती न होती। बहुत ताणी झाली यानी कि मैंने बहुत उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। बात डाया अनुभवीए कहूँ। जो गांव के बुज़ुर्ग लोग थे और समझू लोग थे उन्होंने सेठ को बोला कि हरकचंद सेठ, मृत्यु तो वहेलू मोडू सौ कोईनु आववानुं छे। सभी मनुष्य जो जन्मा है उसका मृत्यु तो निश्चित है ही, किसी का पहले तो किसी का बाद में। सबका मृत्यु एक दिन तो आने ही वाला है। पण मौतनो मलाजो जाळववामां
अपनी मानसाई है। यानी किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका आदर करके, उस समय का विचार करके हमें अपना कार्य करना चाहिए। उसी में हमारी माणसाई એટલે કે મનુષ્યતા है। ये पछी संध्याए कहल संघ ने पण ठपको आप्यो। साथ में जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने कहल संघ को भी डांटा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उस दिन अपनी बैलगाड़ी में हरकचंद सेठ के पास जो सामान था वो रख देना चाहिए था। शरमनी मारी एमनी आँखों भो खोतरवा मांडी अने वाडकांडने आवसान ते दीथी कहल संघनी अक्कलનું તાળું ઉઘડી ગયું। आजनी घड़िए कालनो दी। यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि उस दिन से उनको अक्कलનું તાળું ઉઘડવું એટલે કે બરાબરની બુદ્ધિ આવી ગઈ। ત્યારથી કહળ સંઘે કોઈ દિવસ કોઈને હેલ્પ કરવાની ના પાડી નથી અને ભોં ખોતરવા માંડવું यानी शर्म से नीचे देखते रहना। गांव के सभी जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सभी को यानी हरकचंद और कहल संघ दोनों को डांटा, उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उसके लिए उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई और वे नीचे देखते हुए जैसे उन्हें पूरी ज़िंदगी का बोधपाठ मिल गया हो ऐसे उन्हें बुद्धि आ गई। और फिर वाड कांडने आवसान कहेवत कि जेनो अर्थ थाय छे कि अनुभवे बधुं समझाई जाए। एक बार आपको जीवन में कोई भी अनुभव हो जाता है तो उससे आपको ज्ञान हो जाता है कि आपको ये बात या ये क्रिया जीवन में दूसरी बार करनी है या दोहरानी है कि नहीं दोहरानी, दूसरी बार करनी है या नहीं करनी, वो आपको मालूम पड़ जाता है। आजनी घड़ी ने कालनो दी यानी एक बार जो इंसिडेंट हुआ वो भविष्य में कभी भी नहीं हुआ। इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर हमेशा दूसरे व्यक्ति को कभी ना कभी हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय हमें किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि हम उसे मना करेंगे तो हमारी ज़रूरत पड़ने पर वो भी हमें हेल्प करेंगे नहीं। जैसे कहल संघ ने मना कर दिया तो हरकचंद सेठ ने भी उसका बदला ले लिया। तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को, इस लेसन को फिनिश करती हूँ। इसके साथ अस्तु। स्टे होम, स्टे सेफ।